जीवन प्रदान करे। आमीन। C14 हम पर अपने कृपादानों की वर्षा कर कि हम सदाचरण की बात खोजते रहे और तुझसे बल पाकर उन्हें कार्यान्वित कर सकें। ऐसा वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 4 से 11। पाठ का मूल संदेश है, उसने हमें नए विधान का सेवक बनाया है और वह विधान अक्षरों का नहीं बल्कि आत्मा का है। हमें मसीह के कारण ईश्वर पर भरोसा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी कोई अपनी योग्यता है। हम अपने को किसी बात का श्रेय नहीं दे सकते। हमारी योग्यता का स्रोत ईश्वर है। उसने हमें एक नए विधान के सेवक होने के योग्य बनाया है और यह विधान अक्षरों का नहीं बल्कि आत्मा का है। क्योंकि अक्षर तो घातक है किंतु आत्मा है जीवनदायक। उस विधान के अक्षर पत्थर पर अंकित थे और उसके द्वारा प्राणदंड दिया जाता है। फिर भी उसकी महिमामय घोषणा के फलस्वरूप मूसा का मुखमंडल इतना दीप्तिमय हो गया था कि इस्राएली उस पर आग जमाने में असमर्थ थे। यद्यपि मूसा के मुखमंडल की दीप्ति अस्थायी थी। यदि पुराना विधान न महिमामय था तो आत्मा का विधान कहीं अधिक महिमामय होगा। यदि दोषी ठहराने वाले विधान का सेवा कार्य कितना महिमामय था तो दोष मुक्त करने वाले विधान का सेवा कार्य कहीं अधिक महिमामय होगा। इस वर्तमान परम श्रेष्ठ महिमा के सामने वह पूर्ववर्ती महिमा अब निस्तेज हो गई है। यदि अस्थायी विधान इतना महिमामय था तो चिरस्थायी विधान कहीं अधिक महिमामय होगा। प्रभु की वाणी।
AA2. Dear Archbishop, dear fathers, dear sisters, and my dear boys, the two readings that we have read today place before us a very important goal of life, whether you are a Christian, you are a Savior, you become a priest. In the first reading, you have reading from St. Paul's letter to the Corinthians, where he tells you the Old Testament has been replaced by a New Testament. And what is the difference? The difference between the Old and the New is while the Old was only made of words, the new one is about the Spirit. The Spirit with which you do things. And in the Gospel, Jesus tells us, I am come not to abolish the law. I am come to complete the law. And then last, as the Gospel ends, Jesus makes it very clear. One who does not obey the law, one who does not follow what Jesus asked, he will be the smallest. And one who obeys and teaches others to obey, he will be the greatest. So with that, my dear boys, I want to come to a reflection on your life as surveillance and your life as priest, and on your one-night stay. Time and again, whenever I came here, I keep repeating to do one thing. It is not about keeping the rules. Do this, use mobiles at this time, don't use mobiles at this time. It is about what spirit you are growing in.
if you have decided to follow Jesus, to become priest, then you don't do things because Father Naresh is watching you, Father Walter is watching you, Father Roshan is watching you, or because Bishop is told you. That is not the reason we do things. We do things because we want to come in the perfection of the law of Christ. If you don't get this in your heart now, you will never become good priest. If you don't get that conviction that you are here to serve Jesus, then you will not get out of your comfort zone. If you do not get this in your heart, if you do not get this conviction that Jesus is calling me to love Him, to do what He wants me to do, then you will do what you want to do. That is the difference between the Old Testament and the New Testament. The Old Testament was what? If I give you one slab, on the left, you come and you give me one. The New Testament is different. The whole basis of our life will be, and learn it now when you are small. When you become big, you will not change. Your hearts should have that desire to love the Lord, to serve Him. It is when you get that conviction within you, then you don't require prefects. You don't require rectors. You become your own prefect. You become your own in charge. That is what Jesus wants. That before Him, I can answer. Am I following the rule? Otherwise, you play with the mobile and you keep a book over that. Whom are you fooling? You fooled Father Naresh, you fooled Father Walter, you fooled Jerry. Did you fool God? You fool yourself. I want you to realize this. As you go ahead in your family formation, you have to form yourself. Others can give you guidance. Others can show you the road. But you must have the conviction, I am doing something for Jesus. That is what the readings of today says. That the law controls us because we love Jesus. The law does not control us because we will get punishment, because I will be sent home. You will be sent home, you will be worse than what you are. You have to get your conviction. That is why I don't believe in sending somebody home. But you also should know how you develop yourself. That is what Jesus is asking for. So what am I here? What do I want to do? For whom do I want to live my life? I want to live for myself. I want to get a comfortable life, so I can be a family to some peace. So I want to serve. If you don't settle this issue with yourselves now, you will never settle. You will grow like that. And I want to make it clear again and again to you, each one of you, my boys. Get this conviction in your hearts. Why am I here? Then night and day doesn't matter. You will work for the Lord. But if you don't have that conviction, then this is my time to work, this is my time to do, this is my time not to do. You don't work. Real growth comes when you have the conviction. And Jesus leads you. Jesus gives you a peace. But He leads you as people who are convinced. People who work hard. Don't forget this. Never forget this. If you want, you have to be able to please Jesus. Not to please the bishop, not to please a rector,
not to please somebody who is looking after you, to please you, to make things happen. That is when the last iota of the law will be fulfilled. Praise God for His grace and His service. आइए आज इस विषय के दौरान हम हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, सब विश्वासियों के चरवाहे के लिए हम सब विनती करते हैं, उन्हें ऐसी कृपा दान दे कि वह अपने वचन और उदाहरण से तेरी प्रजा को आत्मिक लाभ पहुंचा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम एक गीत होकर हमारे दोनों विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर उन्हें भला चंगा रखे, ताकि वे स्वस्थ रहकर इस कलीसिया रूपी रेवड़ की संचालन अच्छी तरह से कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम मिलकर सर जेरी और सर शैली के लिए प्रार्थना करें। उन्होंने हमारे लिए निस्वार्थ सेवाएं की हैं। आइए हम उनके परिवार वालों को भी याद करें कि पिता ईश्वर उन्हें हर प्रकार की बुराई से बचाए रखें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम एक स्वर से यहाँ बाहर आए हुए कोई अनुमान और मेहमान सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर उन्हें शक्ति और प्रदान करें, ताकि वे आपके वचन को दुनिया के कोने कोने तक फैला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम स्वयं हमारे लिए प्रार्थना करें। हे आबा पिता, हम सबों को अपनी विशेष आशीष देने की कृपा करें, जिससे हमारे मन में बुद्धि और हमारी इच्छा शक्ति में बल आ जाए और हम अपनी बुलाहट स्पष्ट रूप से जान सकें और उसके अनुसार अपना जीवन साहसपूर्वक बिता सकें और उस बुलाहट में अंतर दृढ़ बने रहें। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे प्रभु, हमारे निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्यों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। पाप के हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरी कर हमारे प्रभु के द्वारा। Love you.
स्वीकार करें और हमारी हम प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारी सेवा से प्रसन्न होकर या व्याकुल स्वीकार करें, इसके प्रभाव से हमारे हृदय में तेरा प्रेम होता जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। परम पिता वास्तुनिष्ठ का न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सर्वत्र तेरे पुत्र को यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरा रक्षक, जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से वेदधारण कुमारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं प्रसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करें। इस बात इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसीलिए स्वर्गदूतों और संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम तेरी महिमा का बखान करते हैं। सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जो भारत अपनी आत्मा के संस्कर पवित्र कर दे कि ये भारत शरीर बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी दी
तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी बात की भोजन के बाद उन्होंने धन्यवाद दिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान पर, जो तुम्हारे और भक्तों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में क्या किया करो। हे प्रभु, हमारे सर्वपिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष केलिस्टोफ को, साहेब बिशप थियोडोर मस्करिनस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि दे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों की और बहनों की विशुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके थे, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरा स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इनके साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान का ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
सभी बुराइयों से बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी प्यास और पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और इस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्ट फिर आकर हमारी धन आशा पूरी करेंगे। शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानी जीवन और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा लोगों के साथ हो। परस्पर शांति विवादित करें। देखिए ईश्वर का प्रेरणा उसे देखिए जो संसार के पाप भर देता है। धन्य में हम सब जो प्रभु की खोज में बुलाए गए हैं।
हे प्रभु, जो हमारे लोगों को चंगा करता है, हर प्रकार कुछ हमसे दूर करिए और हमें सन्मार्ग पर ले चल। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु द्वारा, आमीन। प्रभु हम लोगों के साथ और पवित्र आत्मा प्रभु को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग चाहे ईश्वर को धन्यवाद। Before you sing the